So this is Yes, very good evening, friends. Today we'll start with section 43 onwards. So I would request anyone to please explain what they have understood by section 43. Yes, please, Ajay ji. sir. With the limited knowledge, I just want to explain this. Corporate data, suspended board of director, in their capacity, if they have undertaken any preferential transaction during the prior to the CRP period, this section covers that. And if anything had happened during that period, so penal and other things are mentioned here. How we RP should go proceed before the corporate data suspended board of director. भाई वो तो ठीक है, बट सबसे पहले तो हमें ये देखना है ना कि है क्या प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन. Preferential means uh, It's a related party. हाँ जी. कैन इट बी विद अ रिलेटेड पार्टी और कैन इट बी विद एन अनरिलेटेड पार्टी ऑल्सो? both, sir. यस. Both, sir, which is preferential to the corporate debtor, sir, basically. No. It is not preferential to the corporate debtor. It is preferential. Preference is given to the creditor, basically, to the stakeholder. They have altered the priority of payment. Actually, because we know as per section 53, there is a certain queue. Yes, है sir. ना? 53 we have already seen. Yes. Yeah, yes, Yes. sir. So this is section 53. So section 53 says that first of all, insolvency. Waterfall mechanism. Yes. Insolvency, resolution process cost and liquidation cost. Say, for example, here, the operational creditors, where they are placed? Last. Operational creditors are placed at F. 53(1)(f). Now, Yes. suppose operational creditor or say the supplier of goods is paid first. So then it will be preferential payment. Now let us go back again to 43. So there is a look back period. There is a certain look back period also. Why? What is the importance of this look back period? The look back period is here 1 year or 2 years. 2 years, sir. So 2 years for related party other than by reason only of being an employee, and 1 year for other than a related. Other than this. Preceding the insolvency commencement date. This is also important. Now the point is, the debt itself was payable. There is no doubt about it that the amount was payable. But what they have done is they have altered the priority of payment. So section 43, let us now read it word by word. It says, where the liquidator or the resolution professional, as the case may be. So who will identify these transactions? Either the liquidator or RP. Is of the opinion that the corporate debtor has at a relevant time. Relevant time, we have already seen. Relevant time is given in 53(1)(4). 2 years and 1 year. So what they have done? Given a preference in such transactions and in such manner as laid down in subsection 2. So they say, you see subsection 2, okay, what is the type of preference given? Relevant time. For relevant time, you go to subsection 4. To any persons as referred to in subsection 4. He shall apply to the adjudicating authority for avoidance of preferential transactions and for one or more of the orders referred to in section 44. Now, what is the period within which he has to identify such transactions? Because they say where the liquidator or RP is of the opinion. So whether there any time frame within which he has to identify whether any preferential transaction has taken place? Because he says is of the opinion. So whether for forming an opinion, certain timeline is there? This is my question. Yes, sir.
Yes. What is that? So I think 95 days, 135 days, sorry. Actually, 75 days for forming an opinion. It is given in regulation number 40A. So if we go to regulation 40A, which talks of timelines. So there are certain timelines for 75, 115 and 130. 130. So 75 days are regulation 35A of CIRP regulations. If we go, so RP to form an opinion on PUFE transactions within 75 days. Then within 115 days, he has to make a determination. And then he has to file an application within 130 days. So these are the timelines within which he has to form an opinion, he has to make a determination, and he has to file the application. Okay. For one or more of the orders referred to in section 44. Now, what is preference? A corporate debtor shall be deemed to have given a preference if there is a transfer of property. So first of all, there has to be a transfer of property or an interest thereof. Either there is transfer of property or there is a transfer of interest in the property. Now, what is property and where it is defined? Property is defined in section 3, subsection 27. प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है ना यहाँ पर. Yes, Yes, yes. yes. प्रॉपर्टी ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. प्रॉपर्टी मीन्स Movable and money, goods, actionable claims, land, and every description of property situated in India or outside India, and every description of interest, including present or future or vested or contingent interest arising out of or incidental to property. So this is the definition of property. So what they have done is they have transferred the property. So there is a transfer of property or interest thereof of the corporate debtor. So this property or the interest, it belongs to the corporate debtor which has been transferred. And the word used is for the benefit of a creditor or a surety or a guarantor. Now what is, they have not written to a creditor or surety or guarantor. They have written the word for the benefit. So there might be a transaction like this, that the creditor, the transfer is not directly to the creditor. ठीक है. क्या किया इसने? क्रेडिटर को डायरेक्टली नहीं किया. क्रेडिटर ने बोल दिया कि एक्स को ट्रांसफर करो. ठीक है. द ट्रांजैक्शन इज फॉर द बेनिफिट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिट. फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर और ए श्योरिटी और ए गारंटर. ठीक है. For or on account of an antecedent financial debt or operational debt or other liability. Now, what is the meaning of antecedent financial debt or operational debt or other liabilities? That means there was already a subsisting financial debt or operational debt or other liabilities. That amount was already there. ऐसा नहीं कि payment नहीं था. It was, the amount was payable. The only thing is they have altered the priority owed by the corporate debtor. ठीक है. And the transfer under clause A has the effect of putting such creditor or surety or guarantor in a beneficial position than it would have been in the event of a distribution of assets being made in accordance with section 53. ठीक है. वो जो क्रेडिटर है या जो श्योरिटी है या जो गारंटर है वो बेनिफिशियल पोजीशन में आ गया. ठीक है. So this is the meaning of preference. For the purpose of subsection 2, a preference shall not include the following transfers. क्या क्या included नहीं है? Transfer made in the ordinary course of the business or financial affairs of the corporate debtor or the transfer. ठीक है. Any transfer creating a security interest in property acquired by the corporate debtor to the extent that such security interest secures new value. ठीक है. We have already read the concept of interim finance. So the interim finance gives you a new value. ठीक है. So it says such security interest secures new value and was given, timing is also important, and was given at the time of or after the signing of a security agreement that contains a description of such property as security interest and was used by the corporate debtor to acquire such property. And
such transfer was registered with an information utility on or before 30 days after the corporate data receives possession of such. ठीक है, टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, व्हाट इज द टाइम ऑफ दैट? At the time of or after the signing of a security agreement that contains a description of such property. For example, the CD has obtained an interim finance of 10 crores. Now, for obtaining that interim finance, they have created a security interest in favor of the creditor who has provided such interim finance. ठीक है, and the timing is also important. ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द साइनिंग ऑफ ए सिक्योरिटी एग्रीमेंट है. ये नहीं कि पहले आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया और बाद में एग्रीमेंट हो रहा है, नहीं. ठीक है, एंड वाज यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू एक्वायर सच प्रॉपर्टी. और इसी इंटरिम फाइनेंस के लिए आपने क्या किया है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट. और ये जो ट्रांसफर है, सच ट्रांसफर वाज रजिस्टर्ड विद एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी on or before 30 days after the corporate data receives possession of such property. ठीक है, provided that any transfer made in pursuance of the order of a court shall not preclude such transfer to be deemed as giving of preference by the corporate debtor. मतलब क्या? shall not preclude. shall not preclude मतलब shall include. ठीक है, not भी हो गया और preclude भी हो गया. इसका मतलब यह है कि इवन इफ द ट्रांसफर इज इन परसुएंस ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर, दैट मे ऑल्सो बी ए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? द लॉजिक बिहाइंड दैट इज that courts look at the limited set of circumstances which are put before them. ठीक है, explanation for the purpose of subsection 3 of this section, new value means money or its worth in goods. भाई या तो आप पैसा दे दोगे क्योंकि आपने प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ लिया, ठीक है ना, या तो मनी और इट्स वर्थ इन गुड्स, सर्विसेज और न्यू क्रेडिट और रिलीज बाय द ट्रांसफरी ऑफ प्रॉपर्टी previously transferred to such transferee in a transaction that is neither void nor voidable by the liquidator or the RP under this code, including proceeds of such property, but does not include a financial debt or operational debt substituted for existing debt, financial debt or operational debt. क्या मतलब? If it is merely a substitution, ठीक है, एक फाइनेंशियल डेट था, उसको हटा करके दूसरा फाइनेंशियल डेट आ गया, ठीक है, तो फिर उस केस में इट विल नॉट बी डीम्ड एज प्रेफरेंशियल. ठीक है, रिलीज बाय द ट्रांसफरी ऑफ प्रॉपर्टी प्रीवियसली ट्रांसफर्ड टू सच ट्रांसफरी इन ए ट्रांजेक्शन दैट इज नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल बाय द लिक्विडेटर और द आरपी. क्या मतलब? सपोज यू हैव परचेज्ड सर्टेन गुड्स फ्रॉम ए सप्लायर, ठीक है, बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. Now what you have done is you have given that back, you have returned those goods. ठीक है, it was a genuine transaction, it was neither void nor voidable. ठीक है, वैलिड ट्रांजेक्शन था, तो आपने क्या किया? यू हैव गिवन देम प्रेफरेंस. सप्लायर ऑफ गुड्स, एक किसी ने आपको गुड्स सप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, आपने क्या किया? आपने उसके गुड्स रिटर्न कर दिए. गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं था, वो ट्रांजैक्शन वॉइड या वॉइडेबल नहीं थी, ठीक है, तो भी ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाएगा. A preference shall be deemed to be given at a relevant time if it is given to a related party other than by reason only of being an employee during the period of 2 years preceding the insolvency commencement date. ठीक है, तो जो रिलेटेड पार्टी है उसके लिए 2 years का पीरियड है, और ए प्रेफरेंस इज गिवन टू ए पर्सन अदर देन ए रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year preceding the insolvency commencement date. ठीक है, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई प्रमोटर्स को पता चल जाता है अब ये कंपनी डूबने वाली है, ठीक है, तो जो डायरेक्टर का लोन है, सपोज डायरेक्टर ने एक लोन लिया हुआ, डायरेक्टर ने लोन दे रखा है कंपनी को, तो उसको पहले पेमेंट कर दें आप, ठीक है. कोई रिलेटेड पार्टी है,
उसको पहले आप पेमेंट कर दें, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है 43 से हिट हो जाएंगी। आपका लुक बैक पीरियड है 2 ईयर्स और 1 ईयर। अच्छा, एक और पॉइंट बता दीजिए बिफोर वी मूव टू सेक्शन 44, क्या इसमें फ्रॉडुलेंट इंटेंशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है सर। है? यस। नहीं है। यहां फ्रॉडुलेंट इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने इंटेंशन आपकी चाहे सही भी थी, इंटेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं वर्ड लिखा है नहीं इंटेंशन के बारे में? कुछ नहीं लिखा। यहां इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है 43 में। सिर्फ फैक्ट है कि आपने ट्रांसफर कर दिया। डेट भी जेन्युइन था आपका, ऐसा नहीं डेट नहीं था, डेट भी था, सब कुछ था। तो यहां पर 43 में इंटेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से ऐसा किया है, वो ये कह रहा है आपने ऐसा कर दिया। ठीक है। अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन लिख देते तो उस पर डिस्प्यूट हो जाता कि भाई फ्रॉड था नहीं था। तो वो ये कह दिया भाई आपको तो फैक्ट देख लेना है कि आपने ट्रांसफर किया है या नहीं किया है, बस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इन इंटरेस्ट दे रहा। सिंपल सी बात है। 2 साल देखो या 1 ईयर देखो, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई, दैट इज डिफरेंट। ठीक है। या यू हैव सिक्योर्ड सम न्यू वैल्यू, दैट इज डिफरेंट। नॉट ओनली सिक्योरिंग ऑफ न्यू वैल्यू, बट इट्स दैट ट्रांसफर वाज रजिस्टर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑल्सो ऑन और बिफोर 30 days। ऐसा नहीं कि वैसे बैक डेटिंग में कोई ट्रांजेक्शन कर लियो, है ना भाई, एग्रीमेंट आपने खुद ही घर पे बना लिया, नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ भी रजिस्टर किया, तो इसका मतलब जेन्युइन ट्रांजेक्शन है ना। तो ये है 43। तो एनी क्वेश्चंस ऑन 43 बिफोर वी मूव टू 44? 43 में 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, एंटीसीडेंट फाइनेंशियल डेटा और ऑपरेशनल डेटा और अदर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वाज एग्जिस्टिंग, ऐसा नहीं कि लाइबिलिटी नहीं थी। सेकंड इज गिविंग ऑफ प्रेफरेंस। लुक बैक पीरियड है 2 ईयर्स और 1 ईयर। ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शंस क्या है? ट्रांजैक्शंस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या सिक्योरिंग न्यू वैल्यू एंड रजिस्ट्रेशन विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ठीक है। इवन कोर्ट ऑर्डर्स आर नॉट प्रिक्लूडेड। तो ये हमारा सेक्शन 43। अब देखिए, पेमेंट की बात तो हमें समझ में आ जाती है कि पेमेंट हमने कर दिया। पेमेंट के अलावा वो एक बात और बोलता है 43 में, क्या बोलता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर और ए श्योरिटी और ए गारंटर। ठीक है। ये गारंटर के साथ कैसे ट्रांजेक्शन होगी जो प्रेफरेंशियल हो जाएगी, या श्योरिटी के साथ किस टाइप की ट्रांजेक्शन होगी? कैन यू एक्सप्लेन? क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है विच में बी प्रेफरेंशियल? पेमेंट इज ओके। रिलीज ऑफ गारंटी। यस, a person had given a guarantee, you have released that guarantee. So ये जो है, इसका आपको हिंट कहां मिलेगा? हिंट आपको मिल जाएगा 44 में, बिकॉज 44 टॉक्स ऑफ रिवर्सल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन आप, एंड देयर इज अ सर्टेन टाइमलाइन आल्सो। टाइमलाइन वी हैव सीन 75, 115 एंड 130 days। ठीक है। इतना तो 43 में क्लियर हो गया। नाउ लेट अस गो टू 44। 44 क्या बोलता है? 44 बोलता है ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। The adjudicating authority may, on an application made by the resolution professional or liquidator under subsection 1। अच्छा, ये बताइए कि सपोज दिस आरपी और लिक्विडेटर डज नॉट आइडेंटिफाई दीज ट्रांजेक्शंस। ठीक है। एंड सपोज ए क्रेडिटर वांट्स टू पॉइंट आउट दीज ट्रांजेक्शंस, तो वेदर ही कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर 43 और नॉट? ओ सर। नहीं, उसके लिए सेपरेट सेक्शन है। ठीक है। तो 43 में जो एप्लीकेशन लगाएगा, कौन लगाएगा? आरपी और लिक्विडेटर। अगर कोई क्रेडिटर है, कोई पार्टनर है, मैनेजमेंट ने एप्लीकेशन लगानी, उसके लिए अलग सेक्शन। तो 44 में क्या बोलता है? ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द आरपी और लिक्विडेटर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43 बाय एन ऑर्डर। अब इसमें 44 में मेनली क्या है? जो भी हुई थी ट्रांजैक्शन उसको ये रिवर्स कर देगी। ठीक है। require any property transferred in connection with the giving of the preference to be vested in the corporate debtor।
भाई आपने क्या किया था 43 में, आपने प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दी थी। अब ये कह रहा है ये वापस कर दो, किसको वापस कर दो, सीडी को, क्योंकि ट्रांसफर किसने किया था, सीडी ने किया था। ठीक है, जब ये ट्रांजेक्शन हुई उस टाइम तो आरपी था ही नहीं पिक्चर में, है ना। ये तो ट्रांजेक्शन पहले इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले की है, या तो 1 साल पहले की है या 2 साल पहले की है ना। उस टाइम तो आरपी वॉज नॉट इन पिक्चर। तो वो कह रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर दो, किसको, सीडी। सेकंड, require any property to be so vested if it represents the application either of the proceeds of sale of property so transferred or of money so transferred। भाई आपने क्या किया, आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, किसको, क्रेडिटर श्योरिटी या गारंटर को। उसने क्या किया, उसने उसको बेच दिया आगे। अब वो प्रॉपर्टी तो है नहीं। पहले में क्या लिखा कि भाई जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी वो आप वापस कर दो। वो कह रहा है मिलॉर्ड मेरे पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैंने तो उसको बेच दिया। अरे भाई बेच दिया तो जो पैसे मिले वो दे दो। ठीक है, बी का मतलब ये है, रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी, या फिर आपने पैसे दिए थे उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, अगर प्रॉपर्टी खरीदी तो वो प्रॉपर्टी दे दो, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी उसको बेच दिया तो वो पैसे मिले वो दे दो। ठीक है, रिक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी टू बी सो वेस्टेड इफ इट रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन आइदर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड और ऑफ मनी सो ट्रांसफर। भाई या तो आपने मनी ट्रांसफर की होगी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होगी, है ना। प्रॉपर्टी की है तो जो प्रोसीड्स है वो दे दो, और अगर मनी दी थी तो मनी से जो प्रॉपर्टी आई वो दे दो। ठीक है, बी पॉइंट भी क्लियर है। नाउ सी, रिलीज और डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब आपने क्या किया 43 में, क्या है 43 में कह रहा है कि आपने सिक्योरिटी भी दे दी, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एन इंटरेस्ट दे रहा हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनसिक्योर्ड लोन था, आपने उसको क्या किया, सिक्योर्ड बना दिया। ठीक है, तो अगर आपने, और उसके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, अगर आपने सिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड बना दिया तो भी क्या कवर होगा, द आंसर इज नो। नो सर। ये बेनिफिट के लिए होनी चाहिए उसके, है ना। बेनिफिट कब होगा, जब अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड बनाओगे आप, है ना। और वो 50, ये भी सेकंड पॉइंट में भी लिख दिया ना कि 53 में जो है वो बेनिफिशियल पोजीशन में आ गया। ठीक है, बी पॉइंट में लिखा ना कि बेनिफिशियल पोजीशन, तो दैट इज ऑल्सो। तो क्या है, आपने क्या किया, रिलीज और डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। आपने क्या किया था, आपने कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था, मतलब कोई अनसिक्योर्ड लोन था, आपने उसको सिक्योर्ड बना दिया, है ना। कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर था, आपने क्या किया, उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर बना दिया। कोई सप्लायर ऑफ गुड्स था, आपने उसको कहा भाई देखो ऐसा है तुम फ्लैट ले लो। ठीक है, फ्लैट लेने की वजह से वो क्या बन गया, वो होम बायर बन गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया, चेंज हो गई ना प्रायोरिटी। नेक्स्ट, रिक्वायर एनी पर्सन टू पे सच सम्स। अब यहां पर क्या होगा, एनी पर्सन, यहां एनी पर्सन आ गया, टू पे सच सम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, इसको बेनिफिट मिला किससे, कॉर्पोरेट डेटर से। सच सम्स टू द लिक्विडेटर और द आरपी एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट। ठीक है, अगर उसको कोई बेनिफिट मिल गया है तो उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कहेगी कि भाई आप ये पेमेंट कर दो, किसको, आरपी या लिक्विडेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्ट एनी। अब बेनिफिट्स रिसीव्ड क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स में भी नॉट नेसेसरीली इन मनी टर्म्स, आपने मनी टर्म में नहीं किया, आपने उसको कुछ बेनिफिट दे दिया, तो वो ये कह रहा है कि भाई आप उस बेनिफिट जो आपने रिसीव किया उसके बदले में आप पेमेंट करो, किसको, आरपी या लिक्विडेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्ट एनी गारंटर। कोई गारंटर था, डायरेक्ट एनी गारंटर हुज फाइनेंशियल डेट्स और ऑपरेशनल डेट्स ओड टू एनी पर्सन वर रिलीज्ड और डिस्चार्ज्ड by the giving of the preference to be under such new or revived financial debt or operational debt to that person
एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीम्स एप्रोप्रिएट। ठीक है, मतलब किसी आदमी ने गारंटी दे रखी थी, उसकी गारंटी आपने रिलीज कर दी। ठीक है, उसको फायदा हो गया ना। भाई गारंटर एक कंपनी के डेट्स के लिए किसी ने गारंटी दे रखी थी, अब आपने वो गारंटी रिलीज कर दी विद इन 2 ईयर या 1 ईयर। डायरेक्टर ने गारंटी दे रखी थी मान लो, और डायरेक्टर की गारंटी आपने रिलीज कर दी, तो वो ही कह रहा है कि अब वो दोबारा उसको न्यू या रिवाइव्ड फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट टू दैट पर्सन एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीम्स अप्रोप्रिएट, मतलब दोबारा उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाए। ठीक है, डायरेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी for the discharge of any financial debt or operational debt under the order, and such security or charge to have the same priority as the security or charge released or discharged wholly or in part by the giving of the preference। मतलब ये है कि आपने जो डेट डिस्चार्ज किया था, ठीक है, डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी for the discharge of any financial debt or operational debt under the order, and such security or charge to have the same priority as the security or charge release or discharge wholly or in part by the giving of the preference। मतलब आपने क्या किया था, आपने सिक्योरिटी या चार्ज को रिलीज कर दिया था। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आप दोबारा वो चार्ज या सिक्योरिटी उसके ऊपर आ जाए। मतलब बेसिकली क्या है कि एक गारंटर था, देयर वाज अ गारंटर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपने उसकी सिक्योरिटी को रिलीज कर दिया। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इट विल बी अंडर रिन्यूड ऑब्लिगेशन। ठीक है, डायरेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सटेंट टू विच एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज सो वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेटर और ऑन whom financial debts or operational debts are imposed by the order are to be proved in the liquidation or the CIRP for financial debts or operational debts which arose from or were released or discharged wholly or in part by the giving of the preference। क्या मतलब, मतलब ये है कि सपोज आपने क्या किया, आपने एक सप्लायर को पेमेंट कर दिया। ठीक है, पेमेंट तो उसका बनता था, सिर्फ आपने क्या किया, यू हैव चेंज द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। तो उसको ये कह रहा है कि वो उसको अपना डेट जो है दोबारा वो CIRP या लिक्विडेशन में क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट तो उसको पहले ही हो चुका है ना। पेमेंट तो उसको 2 साल या 1 साल पहले ही हो चुका ना, ये प्रेफरेंस तो पहले ही हो चुका। तो वो ये कह रहा है कि उसको अपना डेट जो है CIRP या लिक्विडेशन में क्लेम करना, क्योंकि इसने पैसे तो वापस दे दिए ना यार। अब पैसे वापस अच्छा। दे दिए तो पैसे उसको मिलेंगे भी तो सही ना। भाई आपने, डायरेक्टर का कोई लोन था, ठीक है, आपने, आपको पता चला भाई कंपनी डूबने वाली है, आपने डायरेक्टर को पेमेंट कर दिया। अब डायरेक्टर को कह रहे हैं भाई आप पैसे वापस कर दो कंपनी को। अब पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन उसकी, उसको पैसे मिलने तो है ना। यस यस। तो वो जो मिलने हैं, वो ये कह रहा है कि वो आप CIRP या लिक्विडेशन में क्लेम करो, ये मतलब। ठीक है जी, provided that an order under this section shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than the corporate debtor or any interest derived from such interest and was acquired in good faith and for value। बेसिकली क्या है कि सबसे पहली बात हमें क्या देखनी है कि ये जो ट्रांसफर हुई है, ये हुई है फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, ये 43 शुरू शुरू में ही हमने पढ़ लिया। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, अब अगर, अब मान लो एक आदमी ने कॉर्पोरेट डेटर से वो प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं, उसका क्या होगा, उसने गुड फेथ और फेयर वैल्यू में खरीदी है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हैड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जिस आदमी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है कॉर्पोरेट डेटर से नहीं, दूसरे से, ठीक है, उसको पता था कि भाई इसकी CIRP शुरू होने वाली है कंपनी की, या वो रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, इट शेल बी प्रिज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट वाज एक्वायर्ड और द बेनिफिट वाज रिसीव्ड अदरवाइज देन इन गुड फेथ अनलेस द कॉन्ट्ररी शोन। तो यहां पर एक डीमिंग फिक्शन है। डीमिंग फिक्शन क्या है, डीमिंग फिक्शन ये है कि इट इज नॉट ए ट्रांजेक्शन इन गुड फेथ।
ठीक है, कौन कौन से सिनेरियो में? नंबर 1, इफ इट इज विद ए रिलेटेड पार्टी, या उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थी कि भाई इसकी CIRP शुरू होने वाली है। अब उसके पास कैसे इंफॉर्मेशन थी, ये एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है। A person shall be deemed to have sufficient information or opportunity to avail such information if a public announcement regarding the CIRP has been made under section 13। ठीक है, मतलब अगर पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई है तो इसका मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उसके पास है। ठीक है, तो ये हमारा है सेक्शन 44। तो 44 क्या बात करता है? 44 बात करता है कि जो भी 43 में आपने प्रेफरेंस दिया उसको ये रिवर्स कर। ठीक है, 45 बात करता है अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन। ये अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन क्या है? इफ द लिक्विडेटर और द RP as the case may be, on an examination of the transactions of the corporate debtor referred to in subsection 2, यहां पर भी कौन बता रहा है? RP और लिक्विडेटर। Determines that certain transactions were made during the relevant period under section 46। अब यहां पर भी वही 1 ईयर और 2 ईयर्स का पीरियड। 2 years। सिर्फ एक फर्क है, डिफरेंस क्या है? 2 ईयर्स में वहां पर क्या था? अदर देन बाय रीजन ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय, 43 में। यहां पर जो है, यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां इट इज सिंपली 2 ईयर्स और 1 ईयर। सो इवन इफ एन एम्प्लॉय इज अ रिलेटेड पार्टी, उसके लिए पीरियड 2 ईयर्स रहेगा। ये फर्क है, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, which were undervalued, he shall make an application to the adjudicating authority to declare such transactions as void and reverse the effect of such transactions in accordance with this chapter। ठीक है, तो ये कहेगा कि ये ट्रांजेक्शन्स वॉइड है एंड रिवर्स द इफेक्ट। ठीक है, और अंडरवैल्यूड कब होगा? ए ट्रांजेक्शन शैल बी कंसिडर्ड अंडरवैल्यूड वेयर द कॉर्पोरेट डेटर मेक्स ए गिफ्ट टू ए पर्सन, मतलब यू गिव समथिंग फॉर फ्री, और enters into a transaction with a person which involves a transfer of one or more assets by the corporate debtor for a consideration the value which is significantly less than the value of the consideration provided by the corporate debtor। मतलब ये है कि आपने ट्रांसफर कर दिया वन और मोर एसेट्स बाय द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, when you acquired those assets you gave certain value। Suppose the CD had acquired a property for say 100 crores and now that property has been transferred to someone for 50 crores, है ना? So the consideration is significantly less, so in that case it will be deemed as undervalued transaction। undervalued transactions में होता क्या है? बेसिकली आप अंडर हैंड डीलिंग्स कर लेते हो, ऑन पेपर वैल्यू इज लेस बट यू रिसीव द बैलेंस इन कैश, है ना? तो ये है बेसिक। And such transaction has not taken place in the ordinary course of business of the corporate debtor। ठीक है, now how you will find that the value is significantly less or more? Who will find, who will judge this thing कि significantly less है या नहीं है? कौन जज करेगा इस बात को? भाई एक प्रॉपर्टी 100 की थी, 100 करोड़ की थी, आपने 50 पर का ट्रांसफर कर दी, वो बोल रहा है उसकी वैल्यू ही 50 आज की डेट में, तो ये कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंटली लेस है या नहीं है, और कौन इसका जजमेंट करेगा? The answer is given in section 46(2). The adjudicating authority may require an independent expert। एक independent expert इसकी जजमेंट कर सकता है, भाई adjudicating authority भी नहीं कर सकती ना, to assess evidence relating to the value of the transaction mentioned in this section। ठीक है, now it says such a transaction has not taken place in the ordinary course of business। अब वो ये कह रहा है इट इज नॉट टेकन प्लेस इन दी ऑर्डिनरी। अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई प्रॉपर्टी का वैल्यू मान लीजिए कम हो, वाकई कम हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सपोज इट इज अ होटल प्रॉपर्टी। ठीक है, इट वाज एट ए प्रोमिनेंट लोकेशन, नाउ ए फ्लाईओवर हैज स्टार्टेड एंड दिस प्रॉपर्टी, द एंट्रेंस टू दिस प्रॉपर्टी ये फ्लाईओवर के नीचे आ गया, तो जो उसका लोकेशनल एडवांटेज था नाउ इट इज लेस। ऐसा भी हो सकता है ना? तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है जेन्युइनली कम हो गया हो वैल्यू,
वो फिर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ही उसको जज करेगा। ठीक है। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ वन और मोर एसेट्स बाय द कॉर्पोरेट। यहां वर्ड क्या यूज किया? एसेट्स यूज किया, यहां प्रॉपर्टी यूज नहीं किया। ठीक है। 46, in an application for avoiding a transaction at undervalue, the liquidator or the RP, as the case may be, shall demonstrate that such a transaction was made with any person within the period of 1 year preceding the insolvency commencement. अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है। यहां जो अंडरवैल्यूड है, ये जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर के साथ की है, किसके साथ की है ट्रांजेक्शन। ये कहीं लिखा है क्या क्रेडिटर के साथ की है, किसके साथ की है? भाई 43 में बहुत सारी कहानियां लिखी थी आपने, है ना? वो ट्रांजेक्शन आपने किसके साथ की थी? क्रेडिटर, श्योरिटी, गारंटर। यहां गारंटर। पर ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं सर। यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस ट्रांजेक्शन में बी विद एनीवन, विद एन आउटसाइडर। यहां कोई जरूरी नहीं है कि उसी के साथ की। और यहां क्या ट्रांसफर किया आपने? एसेट्स, और सिग्निफिकेंटली लेस देन दी वैल्यू। यहां एंटीसीडेंट फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल डेट भी कुछ नहीं है ना? अच्छा, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है क्या 45 में? वेदर इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट? नहीं सर। नहीं, देर इज नथिंग मेंशन्ड अबाउट द इंटेंशन। इंटेंशन इसमें भी नहीं है। इंटेंशन किसी दूसरे सेक्शन में आएगी, बाद में आएगी वो। तो 43 और 45 में क्या बेसिक डिफरेंस हो गया? 43 is for only creditor, surety, यस, and एंड 45 इज फॉर एनी पर्सन। any other person. In that case, that is a wider section. Some antecedent financial debt or operational debt or other liability was there, है ना? They have simply changed the priority of payment, है ना? They have altered the priority. But here ऐसा कुछ नहीं। यहां तो क्या है? Value is significantly less and it will be judged by the independent expert. Now 46. Such transaction was made with any person within the period of 1 year preceding the insolvency commencement date, or such transaction was made with a related party within the period of 2 years preceding the insolvency. ठीक है। तो 2 years में यहाँ एम्प्लॉय वाला पॉइंट भी नहीं है, उसमें एम्प्लॉय वाला पॉइंट है ना? बेसिकली जो Statutory रिलेटेड पार्टी authority, ट्रांजेक्शन है सब जगह 2 इयर्स दिया हुआ है, और जो अदर देन रिलेटेड पार्टी वहाँ 1 ईयर का लुक बैक पीरियड दिया हुआ है, राइट सर? हाँ, सिर्फ फर्क यही है कि उसमें 2 years में लिखा है अदर देन बाय रीजन ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय। 43 में वो यहां नहीं लिखा, वहां लिखा ना 43 में। अदर देन बाय रीजन ओनली ऑफ बीइंग। हाँ, तो ये जो बात लिखी है 43 में, ये बात यहां नहीं लिखी हुई 45 में। ठीक है, 46। तो 46 भी क्लियर हो गया आपको? और यहां पर बात क्या लिखता है? यहां कहता है कि इसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगा इसका। क्या 43 में भी लिखा है क्या वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी? 43 में वॉइड डिक्लेयर नहीं हो रही है। नहीं हो रहा सर। नहीं। क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि अमाउंट इज पेएबल। इसीलिए वो कह रहा है ना कि भाई आप उसको CIRP या लिक्विडेशन में क्लेम कर लो उस अमाउंट को। ऐसा नहीं कि अमाउंट देना नहीं था, अमाउंट तो देना था आपको, सिर्फ ये कि प्रायोरिटी चेंज कर दी, आपको पहले दे दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो वहां वॉइड डिक्लेयर करने वाली सिचुएशन नहीं है, उसमें लिखा नहीं है 43 में। Yes. 43 अगर आप देखोगे तो वो क्या कह रहा है? फॉर अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड फॉर वन और मोर ऑफ द ऑर्डर्स। और 44 में भी ये नहीं लिखा, कि उसमें भी लिखा है कि आप क्या क्या करो, ये रिक्वायर रिलीज फलाना ढिमकाना, ठीक है, और आप क्लेम कर लो, बस। ऐसा नहीं लिखा कि ये वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। 45 में क्या लिखा? वॉइड डिक्लेयर। Void and reverse. ठीक है। तो दोनों सेक्शन डिफरेंट है। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि भाई अगर RP या लिक्विडेटर रिपोर्ट नहीं करता तो कौन रिपोर्ट करे। ठीक है। उसका आंसर हमें 47 में मिलता है। 47 गिव्स यू एन आंसर वेर एन अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है। इसमें क्या हुआ
कि undervalued transaction has taken place and the liquidator or the RP as the case may be has not reported it. ठीक है, कोई अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन हुई है और आरपी या लिक्विडेटर ने उसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो क्रेडिटर, मेंबर और पार्टनर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है? क्रेडिटर, मेंबर और पार्टनर। क्या कोई आउटसाइडर रिपोर्ट कर सकता है? आउटसाइडर जो क्रेडिटर भी नहीं है, मेंबर भी नहीं है, पार्टनर भी नहीं है, वो नहीं रिपोर्ट कर सकता। यहां पर भी 47 में भी दैट पर्सन इज नॉट कवर्ड। ठीक है, वो कहीं और आएगा, किसी और सेक्शन में आएगा। ठीक है, creditor, member or partner of a corporate debtor as the case may be may make an application to the adjudicating authority to declare such transactions void and reverse their effect in accordance with this chapter. अब आप एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए इसमें कि वेदर इसमें प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस वाली एप्लीकेशन भी लग जाएगी क्या 47 में या नहीं? ओनली अंडरवेल। नहीं सर, हाँ, यहां सिर्फ अंडरवैल्यूड की बात करता है, यहां प्रेफरेंशियल की बात नहीं कर रहा। अभी अब वो क्वेश्चन हमारा अभी भी बाकी है कि सपोज ए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस एंड आरपी और लिक्विडेटर हैज नॉट रिपोर्टेड इट, है ना, वो आगे आएगा। यहां पर किसकी बात कर रहा है? अंडरवैल्यूड। ठीक है, where the adjudicating authority after examination of the application made under subsection 1 is satisfied that undervalued transaction had occurred and liquidator or RP as the case may be after having sufficient information or opportunity to avail information of such transactions did not report such transactions to the adjudicating authority. ठीक है, it shall pass an order restoring the position as it existed before such transactions and reversing the effect thereof in the manner as laid down in section 45 and 48. ठीक है, requiring the board to initiate disciplinary proceedings against the liquidator or the RP as the case may be. ठीक है, इसका इफेक्ट रिवर्स कर देंगे और बोर्ड को बोलेंगे कि भैया लिक्विडेटर या आरपी के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करो। ठीक है, 47 भी क्लियर है। नाउ 48 क्या बोलता है? ऑर्डर इन केस ऑफ अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शंस। द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 45 may provide for the following. पहला, require any property transferred as part of the transaction to be vested in the corporate debtor. ठीक है, जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हुई है, प्रॉपर्टी का वैल्यू हमने प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ लिया सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 में। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मनी ऑल्सो। प्रॉपर्टी मतलब यहां खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू बी वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेटा। Release or discharge in whole or in part any security interest granted by this corporate debtor. Require any person to pay such sums in respect of benefits received by such person to the liquidator or RP as the case may be, as the adjudicating authority may direct. Require the payment of such consideration for the transaction as may be determined by an independent expert. ठीक है, तो ये ऑर्डर हो सकते हैं इन केस ऑफ अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन। भाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 50 में ट्रांसफर कर दी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ने जज की उसकी वैल्यू 100 करोड़, वो बोलेगा 50 और दे दो, वो पॉइंट नंबर डी में कवर हो जाएगा, है ना। तो ये है 48। नाउ 49 में पहली बार फ्रॉड वाली कॉन्सेप्ट आई है। ठीक है, तो 43, 45, 47 इन तीनों में फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं थी, ना ही आपको प्रूव करना है कि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी। 48 में आ जाएगा वो। ठीक है, और 48 में एक और बात भी खास ध्यान में रखनी है कि ये जो 49 में जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये आरपी या लिक्विडेटर, क्रेडिटर, मेंबर, पार्टनर, कुछ नहीं लिखा है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस आल्सो, 49 में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? where the corporate debtor has entered into an undervalued transaction as referred to in subsection 2 of section 45 and the adjudicating authority is satisfied that such transaction was deliberately entered into by such corporate debtor. ठीक है, यहां पर इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेलिबरेटली की थी फॉर कीपिंग एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर
beyond the reach of any person who is entitled to make a claim against the corporate debtor. ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करते तो उन लोगों को मिल जाता जिनका राइटफुल क्लेम था, और in order to adversely affect the interest of such a person in relation to the claim, the adjudicating authority shall make an order. इसमें 49 में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि यहां ना तो आरपी लिखा है, ना लिक्विडेटर लिखा है, ना क्रेडिटर, मेंबर, पार्टनर, कुछ नहीं। क्या लिखा है? सीडी हैज एंटर्ड इनटू ए ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड। ये दो चीजें होनी है बस, है ना। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कैसे पता चला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है किसी प्रेस रिपोर्ट से पता चला, है ना, कोई एनसीएलटी की जजमेंट से पता चला, कहीं से भी पता चला, विजिल फ्लावर पीएमएलए ऑर्डर से पता चला, कुछ भी हो सकता है ना। तो So based on complaint also, sir. हाँ, कुछ भी, कुछ भी, हाँ विजिल फ्लावर हाँ। Or in order to adversely affect the interest of the adjudicating authority shall make an order restoring the position as it existed before such transaction, as if the transaction had not been entered into, and protecting the interest of persons who are victims of such transactions, provided that an order under this section shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than the corporate debtor. ठीक है, अगर सीडी से नहीं ट्रांसफर हुआ तो फिर वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। एंड वाज एक्वायर्ड इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस और अफेक्ट एनी इंटरेस्ट डिराइविंग फ्रॉम सच इंटरेस्ट, एंड शैल नॉट रिक्वायर ए पर्सन who received a benefit from the transaction in good faith for value and without notice of the relevant circumstances to pay any sum unless he was a party to the transaction. मतलब ये है, अगर the transaction was done in good faith other than the corporate debtor, भाई देखो, कॉर्पोरेट डेटर ने तो क्या किया, कॉर्पोरेट डेटर ने ए को ट्रांसफर कर दी सोच, है ना, और ए ने फिर आगे दे दी बी को, तो बी जो है ना, बी इज ग्रांटेड इम्यूनिटी इन दिस, क्योंकि ही हैज नॉट एक्वायर्ड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर एंड ही हैज एक्वायर्ड दिस प्रॉपर्टी इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है ना, क्योंकि भाई because this transfer of property act also gives immunity कि भाई if a transaction is done in good faith for value and without notice of the circumstances, तो then that transaction is genuine। तो यहां पर भी वही है, अगर सीडी के साथ हुई है तो फिर इसमें नहीं कवर होगा, है ना। shall not affect any interest in property which was acquired from a person other than the corporate debtor। ठीक है, तो 49 भी क्लियर है। अच्छा, 49 में क्या कोई लुक बैक पीरियड है क्या? 49 में कोई लुक बैक पीरियड है? नहीं, इसमें कोई लुक बैक पीरियड भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट इज प्रेफरेंशियल में 2 years 1 year था, अंडर वैल्यूड में भी 1 year 2 year है। यहां पर क्या है, यहां कोई पीरियड नहीं लिखा हुआ क्योंकि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। इससे पहले वाले सेक्शन में फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, यहां फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई ऐसा इसको रिवर्स कर देगा कि जैसे ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं, है ना। अंडर वैल्यूड तो है, अंडर वैल्यूड का मतलब या तो फ्री में दे दी या सब्सटेंशियली लेस, लेकिन पीरियड कितना है, पीरियड नहीं लिखा इसमें। ठीक है, नाउ 50 टॉक्स ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? where the corporate debtor has been a party to an extortionate credit transaction। अभी तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने देखी 43, 45, 47, 49, वहां पर क्या है, सीडी इज ट्रांसफरिंग सम प्रॉपर्टी। यहां क्या हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है, सीडी को मिल रहा है। ठीक है, where the corporate debtor has been a party to an extortionate credit transaction involving the receipt of financial or operational debt। सीडी ने क्या किया है, सीडी ने लिया है, क्या लिया है, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ड्यूरिंग द पीरियड विद इन 2 years प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट। अब यहां पर एक और बात है, हियर देयर इज नो पीरियड ऑफ 1 year और 2 years, सिर्फ 2 years का ही पीरियड है। यहां 2 year और 1 year नहीं, अलग अलग, ये ध्यान में रखना है, चाहे रिलेटेड पार्टी हो चाहे अनरिलेटेड पार्टी हो, यहां 2 years का ही पीरियड है।
ठीक है. The liquidator or the RP, as the case may be, may make an application for avoidance of such transactions to the adjudicating authority if the terms of such transactions required exorbitant payments to be made by the corporate debtor. ठीक है. The board may specify the circumstances in which a transaction which shall be covered under subsection 1. ठीक है. For the purpose of this section, it is clarified that any debt extended by any person providing financial services which is in compliance with any law for the time being in force in relation to such debt shall be in no event considered as a extortionate credit transaction. मतलब if the debt is extended by a financial service provider, ठीक है, in compliance with any law, credit card, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पर दे आर चार्जिंग 36% इंटरेस्ट, है ना, तो उस केस में इट इज नॉट कवर्ड बिकॉज इट इज इन कंप्लायंस विद द लॉ. तो बेसिकली क्या है, यू हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट बट द टर्म्स आर एक्सटॉर्शनेट. तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, वो यहां लिखा हुआ है 51 में, और एक पीरियड इसका क्या लिखा है, पीरियड इसका लिखा है 2 years, where the adjudicating authority, after examining the application made under subsection 1 of section 50, is satisfied that the terms of a credit transaction required exorbitant payments to be made by the corporate debtor. ठीक है. It shall restore the position as it existed prior. तो इसको भी ये restore कर देगा position. Set aside the whole or part of the debt created on account of the extortionate credit transaction. Modify the terms of the transaction. Require any person who is or was party to a transaction to repay any amount received by such person, or require any security interest that was created as part of the extortionate credit transaction to be relinquished in favor of the liquidator or the resolution professional as the case may be. ठीक है. तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इनमें से कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है. तो ये हमारा था 51 तक. एक बार हम इसको एक्सटॉर्शनरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है इसको रेगुलेशन से भी पढ़ लेते हैं. हाँ, ये हमारा रेगुलेशन 5 है ऑफ CIRP रेगुलेशन. तो रेगुलेशन 5 में हमें दिया हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी होती है. ये है जी एक्सटॉर्शनरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन. A transaction shall be considered extortionate under section 50 subsection 2 where the terms require the corporate debtor to make exorbitant payments in respect of the credit provided. ठीक है. Or are unconscionable under the principles of law relating to contracts. Unreasonable terms है. ठीक है. बेसिकली तो उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रिवर्स भी उसका इफेक्ट कर सकते हैं. तो ये तो था हमारा PUFE ट्रांजेक्शन्स के ऊपर. और PUFE ट्रांजेक्शन्स में हमारे कोई अलग से रेगुलेशंस नहीं है, सिर्फ यही रेगुलेशन था, रेगुलेशन नंबर 5. बाकी जो है ना सिर्फ हमारे सेक्शंस ही हैं. अच्छा, एक काम हम और करते हैं इसमें. सर ये रेगुलेशन 11 भी लिखा है ना सर यहाँ, कौन सा रेगुलेशन रेगुलेशन 11 भी लिखा है ना सर कहाँ लिखा है? हमारे एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में रेगुलेशन 11 ऑफ LP. वो लिक्विडेशन प्रोसेस का. हाँ वो एक ही बात है, वो सेम ही, वो यही रिपीट किया अच्छा, हुआ. हाँ ठीक है सर, ओके. हाँ, सो वो सेम ही. 5 ऑफ प्रीपैक आल्सो इज द सेम. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीनों में ठीक है, वो कॉपी पेस्ट है. राइट सर, राइट. हाँ. तो ये तो हमारा हो गया PUFE ट्रांजेक्शन्स का. अब इसके ऊपर ना हमारा एक केस लॉ भी है. वो केस लॉ क्या कहता है? सेक्शन 43
एक मिनट। तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं ऑन पीयूएफई ट्रांजेक्शंस। सर केस लॉस करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, इसके ऊपर केस स्टडीज वगैरह हाँ तो बिल्कुल फिर ठीक है। करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो सेशन होगा ना ठीक है हमारा, सर। उसमें हम केस लॉस कर लेंगे। केस लॉस मैंने शेयर भी किए ना आपसे, ग्रुप में शेयर किए हैं कि नहीं किए? आई डोंट थिंक सो। एक मिनट, मैं ना अभी बस 2 मिनट में कुछ दीजिए, रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल।